پاک فوج کے 2 جوان جن میں سے ایک ملیر کینٹ میں اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، اس وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہے، اور اسی کا سگا بھائی ملتان میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں اپنے گھر واپس آتے ہیں مظفر گڑھ میں، اور پھر معلوم نہیں تھا کہ ایک کا جنازہ اٹھنا تھا اور ایک کو اپنی آنکھ ضائع کروانی تھی۔ نہ تو یہ جنازہ اور نہ ہی یہ آنکھ سرحد پار کسی دشمن کی جانب سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ان دونوں بھائیوں کا یہ حال خود ان کے اپنے علاقے کے لوگوں کی جانب سے ہوا ہے۔ 2 بھائی پاس بیٹھے ہیں، وہ سر میں ٹانکے لگوا کر بیٹھا ہے اور ہونٹ پر بھی ٹانکے اور نہ جانے کتنی ضربیں اور جسم پر لیے بیٹھا ہے۔ یہ چوتھا بھائی بیٹھا ہے جس کے گلے میں اس کی بازو لٹک رہی ہے۔ قصور ان کا بہت سادہ سا بتایا جا رہا ہے، جو ان کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک اراضی خریدتے ہیں گزشتہ برس، وہاں پر چارہ کاشت کرتے ہیں، وہاں سے گھاس پھوس جو ہے وہ کاٹنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کی پاداش میں ان کو وہاں پر باقاعدہ ان صاحب کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیوز آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ ان کو اغوا کر کے اپنے گھر میں درخت کے ساتھ ان کے کلیم کے مطابق پیچھے ہاتھ باندھ کر مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا کمزور، کیا طاقتور، کیا بوڑھا، کیا جوان، سب ایک جیسے۔ ہاں، چند لوگ بچانے چھڑوانے بھی آئے، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ادھر اطلاع دی۔ تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بتا رہے ہیں، 3 کلومیٹر جی، 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بتا رہے ہیں جی کہ وہ رقبہ ہے۔ اور پھر جب یہاں سے دونوں بھائی جو کہ فوجی بھی ہیں اور ساتھ یہ صاحب یہ جاتے ہیں، تو واپسی پر یہ تمام احباب زخموں سے چور لوٹتے ہیں اور اپنے بھائی کا جنازہ لے کر لوٹتے ہیں۔ ایک بھائی اپنی آنکھ گنوا دیتا ہے۔ This is the situation here in مظفر گڑھ۔ یہ حالات ہیں کہ باپ وہ کہتے ہیں جوان جنازہ اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بیچارہ باپ جو ہے جوان جنازہ اٹھا کر بیٹھا ہے، اس بیٹے کا جوان جنازہ اٹھا کر بیٹھا ہے جس کے حوالے سے اس نے خواب دیکھ رکھے تھے۔ اس بیٹے کی آنکھ ضائع کر میڈیکلی انفٹ ہو گیا بیچارہ، پڑا ہے CMH میں۔ یہ بھائی اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے، اور یہ بیچارے کیا بتاتے ہیں کہ ان کا اپنا محافظ ادارہ یعنی پنجاب پولیس ابھی تک ان کے لیے کوئی معاون ثابت نہیں ہو سکا۔ سو ان کا درد، ان کی کہانی، ان کی زبانی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم، جی بالکل، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کا معاملہ فرمائے، آمین، اور آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ کیا دشمنداری تھی؟ کوئی ٹڈا بونا فرعون آ گیا آپ کے علاقے میں؟ کیا ہوا؟ کیا ہماری کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں تھی ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا۔ کون ہے یہ ہماری قوم کے ہی ہیں، راجپوت برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہاں سے ہیں؟ موسیٰ کھنگن جنوبی سے ہیں۔ کیا نام ہے؟ منیر وغیرہ۔ منیر وغیرہ میں کون کون ہے؟ منیر ہے، غلام شبیر ہے، ان کے بیٹے ہیں توقیر وغیرہ۔ اس موضع میں آپ کا رقبہ کیسے ہے؟ اب ہم نے وہاں پہ اراضی خرید کی ہوئی ہے، کتنا عرصہ پہلے؟ کچھ ابھی خرید کی ہے، کچھ پہلے سے خرید کیا ہوا ہے، کتنا پہلے سے؟ تقریباً 10 سال سے۔ کل کتنی اراضی ہے؟ تقریباً 5 ایکڑ۔ 5 ایکڑ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اختلاف کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ کی مخالفت نہیں ہے، آپ کا بازو گلے میں لٹک رہا ہے، وہ ہوٹ پڑائی بیٹھا ہے، سر ہوندا پاٹا ہوا ہے، ایک پرامنا مٹی تھلے ٹر گیا گیا، دوجا اکھ پڑا کے اتنے بیٹھا گیا، اکھ ضائع پھر تسی کہندے رولا رپا کوئی نہیں، کوئی دشمنی کوئی نہیں۔ ہماری کوئی مخالفت نہیں تھی ان تو لوگوں پھر سے۔ کیا ہوا؟ ہم تو ایسے ہی گھاس کاٹنے روٹین ورک سے جیسے میں جاتا ہوں، پہلے بھی جاتا تھا، اس دن بھی گیا تو انہوں نے مجھے باندھا، مضروب کیا، کیوں مارا باندھا؟ پیٹا، پتہ نہیں کیوں۔ کوئی شخص کسی کو ایسے بھی وہاں سے سڑک سے کوئی بندہ گزرے تو آپ باندھ تو نہیں لیں گے؟ بس یہ کوئی وجہ انات تو کوئی وجہ اختلاف تو دو ہم نے ہوگی۔ وہاں کیا لگتے ہیں آپ؟ بیٹھے۔ داماد تھا، بھتیجا بھی تھا، ہائے 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 ہائے۔ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ آپ کا داماد تھا یہ جو داماد تھا۔ یہ جان سے گیا؟ کتنے عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی؟ ابھی 2 3 سے 4 سال ہوئے بعد۔
दो बच्चियां छोटी छोटी जन एक बच्ची दे रहा है ये बच्ची एक 3 महीने की छोटी बच्ची है इधर आओ मेरे पास पालो तुम्हारा रोना नहीं अल्लाह मेरी बच्ची की नसीब अच्छे करे ठीक है ले जाए घबराए नहीं इनका था वो इनको रकबा जो खरीद करने नहीं दे रहे थे नहीं इन्होंने वो चाहते थे कि ये रकबा वो ना खरीदें जो है ना इन्होंने वो रकबा ले लिया जो है ना जी उन्होंने दे दिया इनको इंतकाल भी था कब्जा भी दे दिया इन्होंने गंदम काश्त की जो है ना जी उसके बाद जो गंदम जब तैयार हुई उन्होंने गंदम ज़बरदस्ती काट के अपने घर उठा के ले गए इन्हीं की गंदम महकमा माल ने भी रिपोर्ट दिया पटवारी ने भी रिपोर्ट दिया तहसीलदार ने कानून तमाम कौन है गुंडे हैं फिरौन की औलाद से नहीं वैसे बदमाशी पहले भी 1-2 कत्ल उन्होंने किया हुआ है पहले भी लड़ाई झगड़े जो है ना अपने एक बंदा पहले अपना मरवाया था उन्होंने उसमें जो है फिर उन्होंने 25 बीघे ज़मीन ले ली थी उनसे जो है ना अच्छा। अब ये अपना बंदा मरवा दिया इनका हमारा बंदा मार दिया इन्होंने असल मसाइल ये है फिर वो गंदम का पर्चा इन्होंने दिलवाया वो जो मुनीर है मुनीर को जो है ना बंद करवाया हवालात में और उसका भाई है एक उसका भतीजा है उसके बाद उनको ये दुख था जो है ना कोई हक शफा का मामला तो नहीं ना कोई हक शफा नहीं है ना कोई शुफा नहीं है कोई अदालती झगड़ा नहीं है कोई शय नहीं है कोई शय नहीं है यानी आपकी वजह अनाज जो है वो जमीन खरीदना जो है ना जमीन खरीदना ना जमीन तो तभी होगी ना जब वो आपको चाहते थे कि आप वो जगह ना खरीदें साथ जी वालिद भी मौजूद है मैं मुझे माफ़ कीजिएगा शायद मैं प्रोग्रामिंग के कवायद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ जाते हुए मैं बात करना चाहूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू मूव अहेड विद रूल्स दिस डे सो अगर आपको स्क्रीन में कुछ ऑडनेस लगे मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। आप वालिद हैं? हाँ जी। चाचा जवान औलाद दा जनाजा बहुत औखा काम है फिर ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਜਾੜਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਐਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਰਕਬਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਧਰ ਆਓ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 2 ਕਰਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਬਿਜਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦ ਗੰਦਮ ਪੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਲਈ ਚੋਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਤਰ ਨੇ ਜੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਿਣ ਕੇ ਦਈ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਣਾ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਿਣ ਕੇ ਦਈ ਯਾਨੀ ਵੰਡ ਆਏ ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੰਡ ਬੁਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੀਜੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਥਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਤੂੰ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਰ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਧਾਨ ਬੀਜਿਆ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ 8-9 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖਰੀਦਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਥਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਥਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆਓ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ हाँ जी बिल्कुल ये मालिक थे जी ਪੱਕੀ ਗੱਲ है सारी। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ हाँ, ਹਿੱਸਾ पंचायत 10 बारियां हुई जी पंचायत ਇਹ ਵੰਡਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਆਹ इस वास्ते होया जी ये रकबा था इन्हों का गुलजार होना दा ਹਾਂ इन्होंने काफ़ी अरसे बेचा था इकबाल ने पहले भी खरीदा था परली साइड तो नाल करके ये काश्तकार यही थे जिन्हों का रकबा था इन्होंने फिर इन्हों मजबूरी दिखा के जिस तरह दस रहा है डायलिसिस ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ हाँ जी हाँ साड़ी इमदाद भी करो तो रकबा सी बेचना है उन्होंने कहा उन्होंने रकबा नहीं खरीदिया उस तो बाद इन्होंने इकबाल ने बेचारे ने अपने बच्चे मजदूर थे पढ़ा लो कि उन्हें बेचारे ने इस नौबत दे लियांदे शरीफ आदमी उसकी तो अज तक कोई गल ही नहीं बच्चों की ना किसी के घर जाना ना किसी नाल झगड़ा ना कोई थाना ना तहसीलां मजदूर आदमी जनाब मैसा रखियां ने और मैं दुध बेच के गुजारा करता कोई जिम्मेदार नहीं बच्चों के आसरे थे मुलजम अनेरे ने वो बहुत बदमाश ने जी उन्होंने पहले भी कत्ल करे हुए ने पहले भी कत्ल करे जनाब राजनपुर ਦਾ उन्होंने ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਥਾ ਝੂਠੀ ਕਾਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕਾਲ ਕਰੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਝੂਠੀ ਕਾਲ ਤੇ ਪਕੜਨ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੂਬ ਕੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਪਕੜੋ ਜ਼ਰਾ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ से रिटायर्ड से ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ मैं ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ था। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਟੁਰੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਤ ਸ਼ਾਮ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤਕੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਥੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਥਾ ਅਨਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕੀਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਘਰ ਪਈਆਂ ਥੀਆਂ, ਉਹ ਵਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸੋਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਥੇ, ਮਾਰਦੇ ਥੇ। ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਡੀਪੀ ਹਸਨੈਨ हैदर थी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਥੀ ਉਹ ਸਮਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਕ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਾੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੌਤ ਹੋਏ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਮੇਜ ਨੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ थे। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਲਾ, ਉਹਨੇ छुड़वाया, वो घर चक्की जा रहे थे ਉਹਨੂੰ भी। वो CCD नाम की जो चिड़िया, इसके बड़े रौले रपे डंके बज रहे हैं, वो किस मकसद के लिए होती है, कहाँ पर उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, क्या वो काम कर रही है? और भाई ये लोग हैं जिन्होंने लोगों का जीना आराम किया हुआ है। ये वो लोग हैं जिनको पकड़कर आपको बिहाइंड द बार्स भेजना है, लेकिन वो तो गुंडों और गुमाश्तों की तरह दंदनाते फिर हैं। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਿੰਗੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਭੱਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋਠ ਪਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਫੌਜੀ CMA 'ਚ ਚੱਕ ਪੜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ है। ये है वो टिड्डे फिरौन मरियम साहिबा जिनको CCD को एड्रेस करना चाहिए था, जिनको बिहाइंड द बार्स पहुंचाना चाहिए था। याद रखें कि कातिल भागे हुए हैं। कातिल भागना फख्र की बात नहीं है, ये कंपिटेंस ना होने का मतलब है कि जी नस गए। उनका बिहाइंड द बार्स जाना और बिहाइंड द बार्स जाके बाय लॉ मंतकी अंजाम तक पहुंचना, दिस इज कॉल्ड द रिट ऑफ लॉ। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू सी। अगर आपको नजर आ रही है रिट ऑफ लॉ, जरूर दिखाइएगा आपके सामने। इस खानदान का दुख दर्द, बल्कि खानदान नहीं, माफी चाहता हूँ, इस इलाके का दुख दर्द रख रहा हूँ। ये एक घर का दर्द नहीं है। मैं जिंदे नाल गल करना, वो आपदा पिंडा दिखा दिंदा, वो आपदा कोई ना कोई सट फेट दिखा दिंदा, कोई जख्म दिखा दिंदा। ये मुजफ्फरगढ़ है और मैं इसको पंजाब का एक अहम तरीन इलाका समझता हूँ, लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बहती नजर आ रही है। वजह क्या है कि रिपोर्टेडली लंबी तान कर सो रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिन प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ड्यूटी से वापस आए, मलीर कैंट से वापस आए एक फौजी साहब जो हैं, वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, बाकायदा उनकी जान ले ली गई है। और उन्हीं का दूसरा भाई जो कि मुल्तान में ड्यूटी पर था, वो भी फौजी साहब हैं। वो आँख से बताया जा रहा है कि उनकी बिनाई फारग हो गई, उनकी आँख ज़ाया हो गई है। मसला क्या है कि तुमने हमारी हमसायगी में ज़मीन ख़रीदने की जुर्रत कैसे की है? और इस तमाम तर चीज़ों के पीछे बताया जा रहा है कि एक काका बालदार है, एक पुलिस मुलाजिम है जो इस पूरे इलाके से बाहर है, जो 2 फौजियों की जान भी लेने की कोशिश कर लेता है, जो उसकी फैमिली को भी मारने की कोशिश कर लेता है। यहाँ पर मैंने मुतअद्दिद लोगों से बात की, किसी का हाथ भजाया, किसी का कुछ भजाया, तो एक हादसे च नहीं, किसी ने 6 महीने पहले बन के मारिया सी, किसी ने साल पहले बन के मारिया सी, इन्हां दी घर दी नूं पहले मारिया सी। मतलब आपको यहाँ पर रंग बिरंगे वाकयात मिलेंगे। दिस इज न्यू फेस ऑफ मुजफ्फरगढ़। मुरादाबाद उसकी एक झैली बादी है, डूब कर मर जाना चाहिए उन लोगों को जो क्लेम करते हैं कि हमने मुजफ्फरगढ़ में अमन कायम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
आपका ये होंठ पे टांके लगे हुए हैं, सर पे लगे, कितने कितने टांके लगे हुए हैं? जी 5 टांके ऊपर लगे हैं, 2 होंठ पे लगे हुए हैं। और जो मैंने आपकी तस्वीर देखी हैं, ये अल्लाह मुझे माफ़ करे, आप तो बहुत अजियत में थे, ये बेचारा बाजू तोड़ा के बैठा, हुआ क्या? ये असल में कुछ नहीं हुआ। मैं इस्लामाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ। 1 जुलाई को मैं घर आया हूँ छुट्टी पे। ये मेरे कमर भाई हैं, ये घर के मामला देखते हैं। 2 बड़े भाई आर्मी में होते हैं, घर में सिर्फ वालिद साहब और कमर भाई होते हैं। ये अपने करते हैं जी, ये अपने रूटीन मैटर्स में वहाँ पे जाते रहते हैं जहाँ पे हमारी ज़मीन है। वहाँ पे? ये खंगन शुमाली में। खंगन शुमाली जी, जनूबी, खंगन जनूबी में ज़मीन है। ये सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे चाचू की भी वहाँ पे मौजूद है, हमारी फुप्पो की भी वहाँ पे है, और ये तकरीबन 15 ईयर से वहाँ पे हमारी ज़मीन है। ये कोई आज की, ये जो ज़मीनी तनाज़ा हाईलाइट किया जा रहा है, ये ज़मीनी तनाज़ा असल में है नहीं। क्या है? ये असल में दहशत फैलाने का एक ज़रिया है। वो लोग अपनी दहशत बिठाना चाहते हैं पूरे इलाके पे। ज़मीन का कोई तनाज़ा नहीं है। सियासतदान है क्या? सियासतदानों की पुष्ट पनाही हासिल है। किस सियासतदान तो नहीं है। अब ये तो मैं नहीं मीडिया पे नाम ले सकता किसी का, ना ही मैं श्योर हूँ कि किसकी है। और पंजाब पुलिस भी उनकी पुष्ट पनाही कर रही है। एक बंदा उनका पंजाब पुलिस में है। कौन? उनका बड़ा भाई है जो मुनीर है, जो असल सरगना है, जो दहशत का जरिया बना हुआ है, दहशत का फेस बना हुआ है पूरे इलाके के लिए। उसका एक बेटा है मोहम्मद तोकीर, वो पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के तौर पे भर्ती हुआ है। पूरी पंजाब पुलिस ऐसे लगता है उसकी पुष्टपनाही कर रही है। उसने पुलिस को भी मारा, उन पे 780 भी लगा। उन्हें आपने ही पेटी भरावन में कुटे हैं? जी, पुलिस को भी उन्होंने किडनैप किया। आप बांध के मारने की बात जी कर रहे जी, हमसे पहले उन्होंने उन पे अटैक किया है, उन पे 780 लगा, और पुलिस फिर भी अभी तक उनकी साइड ले रही है। और वो ड्यूटी पर भी है? जी, ड्यूटी पर भी है। इवन वो सस्पेंड भी नहीं हुआ आपने भरावन को कुट मार के भी? जी, उस पे उनको क्यों बांध के मारा था, पहले तो ये बताए ना। पुलिस वालों को, पुलिस वाले किसी मामले में वहाँ पे आए थे इंक्वायरी करने के लिए। उन्होंने पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी की और उनका एक बंदा किडनैप करके घर में रख लिया, उसकी राइफल भी छीन ली और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। एड़ा बन के मार दिया? जी। अच्छा जी, आपके बंदे को क्यों मारा, इस भाई को? ये पता नहीं क्या मसला हुआ। ये डेली जाते थे, हमारे सामने जाते थे। वहाँ हमारी थोड़ी सी ज़मीन नहीं है, बहुत सारी ज़मीन है। मैं ये जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना, ये ज़मीनी तनाज़ा नहीं है। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। ये सिर्फ और सिर्फ दहशत बिठाना चाहते हैं इलाके पे। सुने, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, ज़मीनी तनाज़ा क्या होता है? क्या उन्होंने आपकी ज़मीन से गंदम ज़बरदस्ती उठाकर बेची या नहीं बेची? बेची उन्होंने। और सर केस से ज़्यादा तनाज़ा, मतलब ना हमने उनसे खरीदी, ना उनका कोई लेन देन है, वो पार्टी ही नहीं है, बस वो चदराहट ही बनाना चाह रहे हैं। क्या वो तनाज़ा ज़मीन का नहीं है तो फिर भाई साहब ने उधर जाकर किसी लड़की वगैरह को छेड़ा था? किस चीज का तनाज़ा? मैं सर, हमारे साथ जमीन का तनाज़ा था। पुलिस के साथ क्या तनाज़ा था? मैं बात ये भी आप, बाकी उन पे कोई 7 से 8 FIRs हैं, उनके साथ क्या तनाज़ा था? अभी आपकी बात जी। हम ना, देखिए मेरी बात सुने, अगर हम मैसअप करेंगे ना सब चीज़ों को, हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। आपने कभी 5 पेपर एक साथ एक शीट पर दिए? नहीं ना। तो जो पेपर है हम अभी उसकी बात करते हैं, जब दूसरे की बात होगी तो हम उसकी करेंगे। जी जी। Am I right or not? या मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आप उस दिन कहाँ पे थे जब ये वाक़या? मैं यहीं पे घर पे था, 6 बजे का टाइम था। कब आए थे वापस? मैं 1 जुलाई को वापस आया था। अच्छा। और ये 4 जुलाई का इंसिडेंट है, फ्राइडे वाले दिन का। हमें कॉल आई है जुनेद भाई को, जिनका मर्डर हुआ है। किसने किया? वहीं पे इलाके वालों में किसी ने देखा है, जिसने ये कि वो कमर को मार रहे हैं और लेके जा रहे हैं। उन्होंने कॉल की है कि इस तरह आपके भाई के साथ तशद्दुद किया जा रहा है। मैं और 2 बड़े भाई, एक ही बाइक हमारे घर खड़ी हुई थी, हम तीनों वहाँ पे चले गए हैं। हम उनके घर के करीब नहीं, हम वैसे ही चले गए ना, फ़ौरन ही चले गए कि देखें, जैसे आप थे वैसे भाग। जी, ऐसे ही खड़े हुए थे और फ़ौरन चले गए कि जाके देखें इंसिडेंट क्या है, क्योंकि हमारी तो दुश्मनी नहीं है, कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, हम यहाँ पे होते ही नहीं है इलाके में। वो 2 बड़े भाई आर्मी में होते हैं और मैं इस्लामाबाद होता हूँ। ये यहाँ कोई भी यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ ये भाई सिर्फ ये भाई और वालिद साहब, बूढ़े वालिद साहब। जी। तो जैसे ही हम उनके घर के करीब पहुँचे हैं तो बाइक अभी हमने रोकी नहीं थी, हम पे सीधे फायर खोल दिए गए घर की दीवार से। और मैं इस चीज़ का आई विटनेस हूँ। मैंने अपने भाइयों को रोका कि वो फायर खोल रहे हैं। उन्होंने कहा वो इतनी हिमाकत नहीं करेंगे, हमारी लड़ाई नहीं है उनसे, कोई ज़ाती इतना मामला नहीं है, अना का मामला नहीं है, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, वो हम पे फायर क्यों खोलेंगे। हमने बाइक खड़ी की और उनको अंदर से आवाज़ लगाई कि बाहर आएँ, कमर किधर है, मामला क्या है, बात तो करें। इतने में 15 से 20 लोग जो मुसल्ला थे, डंडों सोटों के साथ, कुल्हाड़ियों के साथ हम पे हमलावर हुए।
इनमें ख्वातीन भी थी कि मर्द थी? ख़वातीन भी शामिल थे। बड़े जावेद भाई को ख़वातीन ने ही यरगमाल बनाया और फिर मर्दों ने टॉर्चर किया। और तकरीबन ये 2 से 3 मिनट के अंदर ये सारा सीन हो चुका था। हम तीनों भाई फुली इंजर्ड थे। हम जब फुल इंजर्ड हुए फिर हम थोड़ा वापस हटे उनके घर से कि अब हम इनसे नहीं लड़ सकते। वो मुसल्ला भी हैं, तादाद में भी ज़्यादा हैं, हम लोग कम हैं। हम उनके घर से पीछे हट आए। बाइक, अभी हमारी बाइक खड़ी है। आप एक और घर में छुपे, आपने अपना लेने की? नहीं, अभी नहीं छुपे, मैं आपको सारा इंसिडेंट डिटेल में बताता हूँ। अभी हम थोड़ा पीछे आए, हमारी बाइक पे उन्होंने फिर डंडे मारना शुरू कर दिए और कुल्हाड़ियाँ मार के उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया बाइक को। मतलब वो गुस्से का इजहार अपनी बाइक पे भी करते रहे और उठा के बाइक को भी घर ले गए। अब हमने 15 पे कॉल की कि इतला दें और पीछे घर में अपने कज़न्स को बताया कि ये इंसिडेंट हुआ है, हम फुली इंजर्ड हैं और यहाँ पे आप जल्दी पहुँचें। पीछे से मेरे 2 कज़न, क्योंकि शाम का टाइम था, सारे अपने अपने काम में बिज़ी थे, कोई घर पे मौजूद नहीं था। वो 2 कज़न पहुँचे हैं और उन्होंने जाके भी हमें यही कहा है कि कमर आ जाएगा, पुलिस आ रही है, आप लोग पीछे आ जाएं, हम इनसे नहीं लड़ सकते, वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और आपका खून बह रहा है। और 1122 पे भी कॉल कर दी। जैसे ही हम अपने कज़न्स के साथ वापस आने लगे, तकरीबन कोई 400 मीटर का फासला हमने वापस की तरफ तय किया, घर की तरफ। हम वेट कर रहे थे रेस्क्यू का और पुलिस का कि पुलिस आए और हमारे ये सब अंदर ये अंदर अबडक्टेड हैं और वो वहाँ पे सामने खड़े हुए हैं अपने घर के दरवाजे के सामने और इनको टार्चर का निशाना भी बना रहे हैं। मीनवाइल जो मैं आपको बता रहा हूँ सारा। तो उन्होंने देखा कि ये लोग खड़े हुए हैं, हमने कॉल की थी, उन्हें लगा कि शायद पीछे से कोई बंदे आ रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि ये तो सिर्फ 2 लोग आए हैं इनको बचाने के लिए, वो दोबारा से हम पे हमलावर हुए। दूसरी झड़प में उन्होंने हमारा पीछा किया। मेरे एक कज़न है लियाकत भाई, उनको भी उन्होंने टार्चर का निशाना बनाया, हालांकि वो उस लड़ाई में वहाँ पे मौके पे मौजूद भी नहीं थे। वो तो हमें वापस लेके जा रहे थे कि आपका खून बहुत तेज़ी से बह रहा है, हमें जल्दी से रेस्क्यू की तरफ जाना चाहिए। कमर साहब को वो पहले अबडक्ट किए हुए जी। अगर मारना मकसूद होता तो वो कमर को बहुत पहले मार चुके होते हैं। उन्होंने कमर को नहीं मारा, उन्होंने मारने के लिए बंदे का इंतखाब और कर दिया। और क्या आप बता रहे हैं एग्जैक्टली। मैं आता हूँ जी, जिस डिस्टेंस से आप बता रहे हैं इस डिस्टेंस से वो आपको भी मार सकते थे। जी, हम सारे मौजूद थे, आपके दूसरे कजन्स को भी मार सकते थे। हम 5 लोग मौजूद थे। आपके इसी भाई को क्यों मारा गया? क्योंकि वो उनके निशाने पे था शायद। निशाने पे तो आप भी थे। मतलब वो उन्होंने पहले से माइंड में बनाया हुआ था कि ये आएगा उसको बचाने के लिए और फिर मैं उनका मर्डर करूंगा। आर्मी के मुलाजिम है, इनकी समात भी जो है ना आर्मी कोर्ट में होनी चाहिए जनाब, जो है ना। ये ज़ाहिर है आपकी राय है, इसका एहतराम भी किया जाना चाहिए, लेकिन कानूनी मामला जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इंसाफ की तवक्को उम्मीद सिर्फ आर्मी कोर्ट से ही नहीं होनी चाहिए। इंसाफ की तवक्को आम आदमी को आम अदालतों, आम जुडिशल सिस्टम, आम पुलिसिंग से भी होनी चाहिए। यही बका का रास्ता है। लेकिन इसके लिए हमारी पुलिसिंग को, हमारे जुडिशल सिस्टम को ये साबित करना पड़ेगा कि हम इस अहल हैं कि हम पर एतमाद करें। ये जो माँ है मेरे सामने, इस बेचारी ने अपने जवान फौजी बेटे का जनाजा उठाया। वो कहते हैं बुढ़ापे में माँ बाप की कमर टूट जाती है, उन्होंने मोढे रह जाते हैं। किसे मापे लिए सब तू औखा कम दुनियावी मामलात जवान जनाजा चुकना, तो वो भी उस धी पुत्र दा जिहड़ा उस घर दा मुढ़ होए। मलीर कैंट में मुलाजमत करता था, फौज से ताल्लुक था। दूसरा भाई मुल्तान में फौजी था, अपनी जिम्मेदारी वहाँ पर अदा करता था। घायरा में अचानक से पता चला कि इस भाई को, ये जो जख्मी बैठा हुआ है, इसको मुलजिमान ने बांध लिया अपने घर और फिर ये पीछे गया तो पता लगा जनाजा आ गया। अम्मा अल्लाह दा हुक्म। हाँ, अल्लाह दी मर्जी बेटा। अम्मा की बनी है? दुश्मनी सी? कोई दुश्मनी थी बेटा। क्यों कम ने सारा? मुकद्दर साडे माड़े थे। बच्चा पट्ठे वड्डण गया था बेचारा, देख औरतां जालम कह रही। औरतां क्यों मार दी? बदतमीज ने वो। पहले पुलिस वाले आए थे ना, उन्होंने बहुत बुरी करी थी पुलिस वालिਆਂ ਨਾਲ भी। वो बहुत बदतमीज औरतां ने। हालांकि साडे राणिਆਂ ਦੀਆਂ औरतां ने कोई लोकल मुहाजिर लोकल नहीं हैगियां सुरैकियां ਦੀਆਂ। सुरैकी भी अच्छे लोग ने, नहीं वो भी सुरैकियां दी छित्तियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। पर साडे राणिਆਂ ਦੀਆਂ औरतां ने बन के दुनिया दा तबाही चकती। मेरा इतना अच्छा बच्चा, इतना प्यारा, बहुत अखलाक था ਉਹਦਾ सारी दुनिया च भी, फौज च भी,
ਪਰ ਹੁਣ ਫੌਜ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਚੱਕਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹ ਡਰੇ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਈ। ਅਮਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ। ਸਾਡੀ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਬਸ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੁੰਬ ਨਹੀਂ, ਲੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਨਾ। ਭੈੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਐਬੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ। ਕੋਈ ਭੈੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਭੈੜ ਦਾ ਕਿ ਘਰ ਜੋ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਭੈੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਔਰਤਾਂ, ਜ਼ਾਲਮ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਜੋ ਗਿਆ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀਡੀਓ? ਮੈਂ ਵੇਖੀ। ਹਾਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ? ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾ ਅਮਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲੀਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ? ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ? 3.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਈਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਮਰਮਾ ਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, 10 ਤਰੀਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਹਜੇ। अजय तो 1 महीने की ਉਹਦੀ बकाया खड़ी थी। इरादा था भी वो भी महीने की लेके गुजारना। मौसम है जाता कर दे कोई। चलो अम्मा की चाहते हो? चाहती तो यही है। आवाज अगे की पहुंचाइए, कोई गल करो तक। बस कुछ नहीं चाहती, मैं यही चाहनी अभी देख मेरी निक्कियां निक्कियां बच्चियां सी, माँ बाप बुढ़े ते मेरे 3 बच्चे सारे जख्मी। एक मेरा उत्थे CMH दाखिल है, ਉਹਦੀ ਅੱਖ बिल्कुल जाया करती, वो भी फौजी है। ते ਇਹਦਾ बाजू खत्म करता। असी हुण किसे खाते दे नहीं, माँ बाप बुढ़े आ। पर फौज नूं हुण चाहिदा है कोई मेरे बच्चे दा, उन्हां कोलों कोई इंतहा बदला लेण। होर तां साडा कोई जरिया। बस मैं ही कहनी हाँ भी सानू यही चाहिदा है कि भी देख मेरा बच्चा किसे तू इलाकियां च फिर के पुछ ली। बिल्कुल जे कोई मेरे बच्चों किसी किस्म का भी कोई ऐब, कोई बैल, कोई लालच, कोई किसी किस्म का, साड़ी अपनी ज़मीन है उत्थे, अपनी ज़ाती ज़मीन पर फसल काश्त की जाती है। शब खून मारते हुए उस फसल पर कब्ज़ा किया जाता है। इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ की सूरत में ये अपना मुकदमा दर्ज करवाते हैं और उसके बाद ये नौजवान कुछ अरसे के बाद रूटीन है, आना जाना रूटीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई मसला, कोई फसाद नहीं था। पट्ठे काटने के लिए जाता है और फिर पता चलता है कि इसको बांध दिया गया। घर टेलीफोन आता है, 3 भाई जाते हैं, एक भाई कत्ल कर दिया जाता है जो कि फ़ौजी है मलीर कैंट में, दूसरा मुल्तान कैंट में आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहा है। उसकी आंख ज़ाया कर दी जाती, फोड़ दी जाती, जिस्म पर बेतहाशा ज़ख्म जो है, सर फाड़ दिया जाता है, अजियत तकलीफ़ पहुँचा दी जाती है। ये अपनी बाजू तोड़वा कर बैठा है, वो सामने होंठ पड़वा कर बैठा हुआ है। बाहर मुझे जितने लोग मिले इनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं, कोई किसी की उंगलियां टेढ़ी हैं, किसी की बीवी को बांध के मारा हुआ है। लाइक इस इलाके में आपको अगर फ़िरौन की का मौजूदा आज के दौर वाला टिड्डे और बौने फ़िरौन वाला अक्स देखना हो तो आप आ सकते हैं, इनके मुल्ज़िमान को देख सकते हैं। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। और ज़िम्मेदारी है इदारों की, ताकि अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हैं तो एक नहीं बेतहाशा घरों में आफियत आएगी, और अगर आफियत आती है घरों में तो मुआशरा पुरअमन होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें अदालत की बर वक्त फ़ैसले करने से मशरूत हैं। ये तमाम चीज़ें पुलिस की दुरुस्त इन्वेस्टिगेशन से मशरूत हैं, और ये सब कुछ करने के लिए काम करना पड़ता है। और अगर काम नहीं किया जाता है तो फिर अपने आप को तैयार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम मुतमईन हैं रब को चैलेंज करते हुए। रोज़े महशर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।